Hello student, I am your physics teacher Nitesh Kumar and you are watching Drona Academy e-learning series. Today I am going to start geometrical optics. Okay, so first look at syllabus. Okay, what's the syllabus in JEE Mains and Advanced as well as in NEET. Okay, first in this chapter we will discuss reflection and refraction through a curved surface as well as plane surface. Then after we will discuss the mirror formula, then after total internal reflection, deviation and dispersion through a prism. Then after we will discuss the lens formula, magnification formula as well as combination of lens. Then after we will discuss the optical instrument. This is the syllabus. Okay, in JEE Advanced there is no optical instrument. Okay, but if you are preparing for the CBSE board exam, for other board exam as well as for NEET and JEE Mains, you have to also read this optical instrument part. Okay, this is important also student. Every year CBSE is asking at least one question from that topic. Okay, now students, what is optics? Okay, it's a branch of physics in which we study about the propagation of light as well as nature of light. Okay, here we will discuss about the propagation and nature of light. It's a very simple. Okay, now depending on the behavior of light, we are dividing this optics in two parts. First one is ray optics and second one is wave optics. Okay, so ray optics and wave optics. What is this ray optics? We'll discuss today. Okay, and wave optics is our next chapter. Okay, so in this ray optics, by the way, this ray optics is also called geometrical optics. Okay, and this wave optics is also called physical optics. Here it is written, by the way. Okay, so now in this part, ray optics will discuss the property, will use the property of propagation of light. Okay, and also, and here in this wave optics part, we'll discuss the nature of light. Okay, and also discuss the few phenomena like interference, diffraction, polarization on that next chapter. Okay, so today we'll discuss the ray optics. Okay, before starting the ray optics, look at this question: what is light? Because in this chapter you have to play with the light. Okay, and if you have to deal with the light in this chapter, you have to know what is light, because this is also in our 10th class. So I suppose you all know little bit about the light. Okay, so what is light? Very simple. Light is a form of energy due to which we are able to see the object. How you are able to see this projector? How you are able to see the screen? How you are able to see this green board? Because light is reflecting from this board or this screen falling to your eyes. Then only you are able to see the object. Is it or not? Similarly, like you can also see the object which are emitting the light. Like look at this laptop screen right now emitting the light, and you are able to see the object. Okay, so if light will fall on your eyes, then only you can see the object. Okay, student, now I'm telling you the history. What is actually light? What is the nature of light? In you can say, like in short, I'm going to tell you. In detail, we'll discuss these things later when we'll start the wave optics. At that time, I tell you about the Newton's, Huygens, Maxwell, Planck, Einstein. Okay, all theory. But in short, I'm telling you that story. So in short, what is this? Newton's. According to Newton, first Newton came. Okay, people approached the Newton and asked, what is light? Okay, so Newton was a big name on that time. Okay, so Newton explained that according to Newton's, light propagate with a very high speed as a stream of small particle, very small particle, and he given the name of that small particle is corpuscle. Okay, that is also called the corpuscular theory. We'll discuss later, don't worry. Okay, then after, this is called the particle nature of light. Then after comes wave nature of light. Okay, Huygens explained. We have to study the Huygens principle in our next
chapter wave optics, there I am going to discuss the nature of light. Okay, so that's why I am just binding it in very short. So according to Hyson or Maxwell, they explained the wave nature of light, and according to them, light is an electromagnetic wave. It not required any medium for propagation, and the speed of light is c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. I suppose you all know this value. Okay, so it's a very simple. Okay, then after this is okay, but first explain the Newton explained the particle nature. Okay, but that particle Newton explained, but Newton was not able to explain the interference, diffraction of light, this property. Then after wave, yes, wave is able to explain, okay, but it's not able to explain the photoelectric effects. So Planck and Einstein did research. We'll discuss about these things also in our modern physics in very detail. There is a separate chapter, photoelectric effect, I will teach you, okay, in modern physics. So there you will study, if light is falling on a, like this is a light ray, if it is falling on a metal surface, what will happen? Electron will eject. Okay, so electron will eject out from this metal surface. This phenomenon actually not explained by this wave theory. Okay, so later we'll study the also particle nature. So till now still we having a confusion, light is a wave or particle, but de Broglie concluded these things, and he told that actually light having a dual nature. Okay, and he also related, we'll discuss these things also in our modern physics. Okay, so according to him, or by the way, we are also following like this, sometime light is behave like a particle and sometime light is behave like a wave. Okay, so this is actually, I just told you these things in very short. We'll discuss these things later when we'll discuss the actual nature of light, property of light in our physical optics or in our wave optics. Now comes to the ray optics chapter. Okay, before starting this ray optics chapter, I'm going to discuss, I'm just going to conclude whatever I told you in very short here. It's a properties of light. Okay, first Maxwell given this property. Okay, the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. It's the highest speed. Getting my point, student? It's a highest speed, maximum speed. Second, also Maxwell told the light is a electromagnetic wave. Okay, you already know this property from 10th class. Okay, but in detail we'll discuss these things in our electromagnetic wave chapter. Okay, leave. Light carries energy and momentum. I also calculate, I will tell you how it's containing the energy as well as momentum later. Okay, in this chapter we are not going to discuss about the nature of light. We'll just discuss here propagation of light. We'll deal with the propagation of light. It's called also geometrical optics. So we'll deal with the geometrical properties of lights. Okay, like if light is striking at any surface, then what will happen, how it will actually reflect back, with how much angle, like these things we'll discuss first in this chapter. In second chapter we'll discuss the nature of light, properties of light in detail. Okay, now so here look at this. First I'm telling you, this is our electromagnetic wave spectrum. Okay, and in this spectrum here the visible region is this one, between 3600 Armstrong to 3800 Armstrong. Okay, so here it's a visible region. We'll also discuss this electromagnetic wave spectrum in our chapter. That chapter is called electromagnetic wave. We having a separate chapter for that. Okay, so that's why I'm telling you student, 12th class syllabus is very interesting. Everything is given in very detail. Okay, so we'll discuss that things there. Okay, at proper time we'll discuss. Okay, so right now I'm going to start with first, before starting the beam of light, tell me what is ray? What is this ray? It's actually a imaginary notation of light, and direction is propagation of direction of light. Simple. Okay, like we are denoting it by the arrow, single ray. Okay, and if we having a collection of arrows,
If we having a collection of arrows, it means it's a beam. Written here, look at this. A beam of light is a collection of these rays. The three type of beam will deal. That's the first is parallel beam. Look at this here. These rays are parallel to each other. Very simple. Okay. Now look at this here. Diverging is from a source, from a light point source. Light is diverging. So how you will represent? Through the ray diagram. So you can say it's a divergent beam. And here look at this, converging. All are focusing towards a one point. That's why it's called the convergent beam. It's a very simple, very natural, and especially this chapter, na students, is very natural. Okay, by the way, the whole physics is very natural. Why? Because in physics, what we are doing? Tell me, what is physics, student? You are in 12th class. You already passed the 11th. So tell me, what is physics? It's a branch of science in which we observe, measure, and describe the nature and natural phenomena. Okay, so it's a very natural subject. Look at this. How rainbow is formed. We'll discuss these things here in this chapter only. We'll discuss. Next chapter also we'll discuss why our sky is blue. गाना सुना है ना? Why our sky is blue. Okay, so these things we'll discuss. Okay, so in this chapter. That's why it's a very beautiful chapter also and very interesting. Okay, किसी को कुछ समझ में आए ना आए, ऑप्टिक्स जरूर समझ में आता है ना? ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, घिसा पिटा चीज वही 10th क्लास का है, मजा आएगा, कोई बात नहीं. ओके, मैं इतना भी बोर नहीं करने वाला हूं कि 10th का है तो भैया 10th की तरह पढ़ा करके निकल जाएंगे, नहीं. We'll discuss good question on the same topic because we already know what is reflection. बहुत सारे तो भूल गए होंगे, है ना? But tell me what is reflection. डस्टर मारने के लिए नहीं उठाया. So what is, अबे साफ करना है भाई. हाँ, reflection. What is reflection? Tell me, student. Reflection is very simple. Look at this. I'm assuming it's a media layer. Okay, media layer means, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, फील आएगा. बाय द वे, इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैं पहले उसका एग्जाम्पल ले लेता हूं. ठीक है, जैसे कि देखते हैं, ये क्या है? अच्छा, चौक से टिक टिक करने का ना एक म्यूजिक आता है ना? सोच रहा था म्यूजिशियन ही बन जाओ, बाद में सोचा तुम लोग को पढ़ाएगा कौन, टीचर बनी. ओके, सो लुक एट दिस स्टूडेंट. लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस मीडिया लेयर. अच्छा, क्यों इसको मीडिया लेयर बोला? ऊपर एयर, नीचे पानी. अच्छा, पानी तो समझ में आता होगा. नहीं सर, हम तो लंदन से हैं, मुझे नहीं आता समझ में. पानी, वाटर. Okay, so here we having a air and here we having a water. Okay, what will happen if this incident ray will fall at this point? This point is called incident point. Okay, what will happen? It will reflect back, and some part of this ray will go transmit. नहीं हो तो घर पे देखना, एक बाल्टी लेना, उसमें पानी रखना, टॉर्च मारना, पता चलेगा ऊपर भी दिख रहा है, नीचे पानी के अंदर भी दिख रहा है लाइट. Same thing will happen. Okay, so partially it's reflected back to the same medium. Same medium क्यों भाई? क्योंकि ऊपर क्या है? Air. नीचे क्या है? Water. Okay, and some part of light is transmitted. Okay, समझ में आ रहा है? Very good. So this is called ये this phenomena, the reflecting back of light, bouncing back of light in same medium. This is called the reflection. Okay, and here the light is transmitted. This is called the refraction. Very simple. Okay, so अगर हम लोग थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज से डिफिनेशन बोलने की कोशिश करें, by the way, how you will write the definition, you can pause. That's why today I am using the projector. Okay, because you have to write definitions also. You have to learn the definitions also. So what you can do, you can pause the video and you can write the definitions. By the way, I am telling the simple definition. Simple definition is coming from here, this experiment only. Tell me, if a light ray incident on media layer, the media layer throws back the light in partially or wholly. Okay, partially throws back the light in same medium. Try to understand. और इंसिडेंट मीडियम, उसको इंसिडेंट में, क्योंकि यहीं से आ रहा है ना लाइट, इसलिए इंसिडेंट मीडियम. दिस होल फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. वेरी सिंपल. इज इट और नॉट? सबको समझ में आ गया? इधर से भी लिख सकते हो,
पता चला किसी को रेज नहीं पता है, किसी को रिफ्लेक्शन लिखने नहीं आता है, भाई डूब मरो फिर, है ना। ऐसा मत करना, पता चला बता दिए कि सर ने बोला डूब मरो। ओके, नाउ कम्स टू द पॉइंट स्टूडेंट्स, देयर इज अ टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाम से ही समझ में आता है, वेरी सिंपल, है ना। नाम से सिर्फ आदमी के बारे में समझ में नहीं आता है ना, बस ये सब समझ में आता है क्योंकि इसका नाम रखने वाला ही दिमाग लगाया है। हम लोग के नाम रखते समय दिमाग नहीं लगाया जाता है थोड़ा, है ना। गुड्डू, सोनू, मोनू, मेरे समझ में ही नहीं है आज तक गुड्डू का मतलब क्या होता है। तुम लोग को पता चले तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्डू। जिसका नाम गुड्डू है सोच रहा होगा कि सर तो आज मेरे बारे में पढ़ा दिए, ठीक है। सो हियर व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, लुक एट दिस स्टूडेंट। मैं थोड़ा इधर बताता हूँ, मिटाओ इसको यार पानी को। ओके स्टूडेंट, सो लुक एट दिस, हियर आई एम अज्यूमिंग इट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग क्या लेते हैं पता है, मिरर। ऐसा नहीं पानी ले लेके लैब में काम करेंगे, मस्त रिफ्लेक्ट करता है मिरर। मिरर जानते हो ना, दर्पण। अच्छा, हिंदी में कितना मजा आता है ना बोलने में चीजों को, ठीक। सो हियर इट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इफ light is incident, ठीक है, these rays are parallel to each other. Now after reflection it's a reflecting back to the same medium. Now student tell me, these rays are also parallel to each other. parallel line तो समझ में आता है ना। I suppose you all are expert in maths, इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए। And here in this chapter we are going to use the basic geometry ऑफ 9th and 10th क्लास। ओके, तो ऐसा अगर किसी को थोड़ा भी दिक्कत है 9th क्लास के ज्योमेट्री में, 10th क्लास के ज्योमेट्री में, ठीक है, तो आप लोग रिवाइज कर लेना, स्पेशली थ्योरम्स, है ना। क्या क्या रिवाइज करना है, स्पेशली स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल, सर्कल, ये रिवीजन कर लेना है फटाफट, ठीक है। आपके पास 9th 10th, अब ये मत बोलना कि सर हमने 9th 10th के मैथ्स का बुक का बेच के भूजा खा लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेट पर मिल जाता है यार, कहीं से रिवाइज मारना आज, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या कहता है, एनसीईआरटी बुक्स में जनरली जो है हाँ एनसीईआरटी थ्योरम्स रिवाइज करने, कहीं से रिवाइज करो यार, क्या मतलब, छोड़ो, काम की बात करते हैं। इफ पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, लुक एट दिस, द सेम लाइक दिस, इट मींस इट्स अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बनाया है, मैंने ही बनाया है, टेंशन मत लो। ओके, नाउ द डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द डिफ्यूज एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन? ऐसा ही है, मान लो जिग जैग सरफेस है ना, कर्व सरफेस ले लिया। अभी रे जो इधर आ रहा है ना भाई साहब, वो तो है पैरेलल, है कि नहीं। लेजर लाइट डाल दिया यूं, खबाच। नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, इट विल रिफ्लेक्ट बैक। नाउ टेल मी, किसी को पता चला ये भी हो पैरेलल लाइन? दिस नॉट अ पैरेलल लाइन। ओके, सो इफ इट इज नॉट अ पैरेलल लाइन, तो ये कैसा है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। ऐसे समझाने के लिए बता, कोई नहीं पूछने वाला है, मैंने तो आज तक कभी क्वेश्चन नहीं देखा इस पे, है ना, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू तुम लोग को पता चले कैसे रिफ्लेक्शन होता है। डोंट वरी, इन नेक्स्ट चैप्टर आई विल गिव यू आल्सो द प्रूफ ऑफ दैट फॉर्मूला रिफ्लेक्शन, ना तुम लोग जो पढ़े हो ना, I इक्वल टू आर, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, अभी मैं भी पढ़ाऊंगा और उसका प्रूफ भी दूंगा इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। वो बोला तो नेक्स्ट चैप्टर इज बेस्ड ऑन द फुल प्रॉपर्टी, वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ओके, तो ये देख लो, समझ लो, थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इट इज, हियर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, सो यू कैन से रिफ्लेक्शन इज एक्चुअली हैपनिंग एवरीवेयर। तुम चाहे वो कर्व मिरर ले लो, चाहे वो प्लेन मिरर ले लो, चाहे कुछ भी, चाहे ऐसा खराब सा मिरर ले लिया, ये मिरर है भाई। बहुत सही, समझ में आ रहा है, तो ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या क्या होता है, थोड़ा सा नाम वाम डाल के पता चलता है। एक डायग्राम बनाता हूं बहुत सही सा और उसमें सब कुछ बताऊंगा। डिफिनेशंस जिसको चाहिए फिर से मैं बता रहा हूं, वीडियो को पॉज करो और मस्त छाप लो। छापना ही कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं कॉपी कर लो। अच्छा, सो नाउ स्टूडेंट आई एम ड्रॉइंग अ normal on this reflecting surface. Now
इंसिडेंट रे is falling at this O point, this is called the incident point. ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है? जहां पे इंसिडेंट रे मिलता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को फर्स्ट टाइम, है ना। अच्छा, मिलने से कुछ और भी याद आ जाते हैं ना। ओके, अरे क्लासरूम, स्कूल, कहाँ बच्चा मिलता है हम लोग से? स्कूल में आके ना, क्लासरूम में जाकर के। ठीक, सो लुक एट दिस स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल, दिस इज कॉल्ड द reflected angle, and this is called a glancing angle. Okay, I'm denoting it with the GI, glance angle of incidence also it's called, and this is called the glance angle of reflection. नाम दे दिया, कुछ भी नहीं है। IN दिया, मेरा फेवरेट नितेश हूँ ना। ओके, हेयर आर, मीडियम का नाम दे, मिरर का नाम दो M dash. ओके, सो M dash, जनरली आई विल रिप्रेजेंट द मिरर विद द M dash. ओके, तुम्हारा जो मन है वो नाम दो, राम मोहन सोहन। ठीक है, a ray is incident at this point, this is called the incident point. Here this one is called the incident angle, this is called reflected angle, this is called the glance angle of incidence. By the way, these things are the definitions are written, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, 10th क्लास के बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे चूजे, उनको जो है ना, अच्छा इतने छोटे भी नहीं होते हैं, इससे मैंने बताया, पता चला तुम लोग जाकर नर्सरी क्लास वाले को बोल रहे हो 10th क्लास। ठीक है, सो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मैं सारा डिफिनेशंस लिखाता हूँ, है ना। व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज ग्लैंसिंग एंगल, आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नहीं पता हो तो मेरा ही 10th क्लास का वीडियो जाकर के देखो, वहां पे सारा डिफिनेशंस लिखाता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत सही, सब इंटेलिजेंट बैठते हैं 12th क्लास में। ओके, नाउ कम्स टू द laws of reflection. What is laws of reflection? We all know the incident ray, normal drawn at incident point, and reflected rays. These all three lie in a same plane. Okay, here it is written: incident ray, reflected ray, and normal lies in same plane. यहां पर तो दिखा भी दिया है ना, मिरर एक प्लेन, और इस प्लेन में तीनों लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। और ऐसे तुम अगर इसको यूं वर्टिकली कटोगे, खपाच, काटने पे आवाज आता है खपाच। अगर ऐसा तुमने कट किया, फिर क्या होगा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल जो ड्रॉ किया हुआ है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल विल कट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा डायग्राम है, एकदम 3D में आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। सेकेंड, वैसे बाय द वे यू ऑल आर एक्सपर्ट ऑफ दिस टॉपिक, आई नो दैट। क्वेश्चन दूंगा तब पता चलेगा कितने एक्सपर्ट हो। ओके, सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत सही, इसमें समझने का था ही क्या। अच्छा, कभी कभी ना इस पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, और बेकार क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। मान लो I इक्वल टू 30 डिग्री, निकाल सारा, तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 30 डिग्री, GR इक्वल टू 60 डिग्री, एंड GI इक्वल टू 60 डिग्री, खत्म। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन कहाँ आता है? छोटे बच्चों के लिए आता है, 7-8 में। अच्छा, 7-8 में भी आता है ये, क्यों? क्योंकि लाइट चैप्टर हमारे पास ना 6 क्लास से है ना। 6 में है, 7 में है, 8 में है, 10 में है, 12th लास्ट वर्जन तुम लोग पढ़ रहे हो। अच्छा, यही नहीं खत्म होता है। अगर किसी ने BSc गया, किसी को फिजिक्स पढ़ने का मन हो गया, वहां कोई इंजीनियर ही बनने चले गया, भैया वहां भी ऑप्टिक्स पढ़ना होता है ना। तो ऑप्टिक्स अभी पीछे नहीं छोड़ने वाला, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ बच्चों का तो प्राण है, इसी से पास हो जाते हैं, है ना। चलो, हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस पे। हाँ, गर्मी बढ़ गया आजकल। अच्छा, पता चला कि इस वीडियो को कोई देख रहा है ठंडे के मौसम में, गर्मी बढ़ गया, घबरा गया। ऐसा नहीं है, अभी गर्मी है जब मैं शूट कर रहा हूँ, है ना। ठीक, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू द प्लेन मिरर, थोड़ा सा ये पढ़ते हैं। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन कर ले क्या, जेई का पूछा हुआ मजेदार क्वेश्चन करो, यू ऑल आर एक्सपर्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो फटाफट। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है? काम का चीज एक ही पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और सब भी काम ही का था, थोड़ा जानकारी के लिए था। ठीक है, इंफॉर्मेशन था। ओके, सो नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस, वी हैविंग अ 2 मिरर, एक ऐसा है और एक ऐसा है, इंक्लाइन। ठीक है ना स्टूडेंट, एक रे जो है इधर से
यूं इस पे फॉल किया, ठीक है, इंसिडेंट रे। अब इसके बाद क्या हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगा, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जाके खा जाएगा मिरर, रिफ्लेक्ट बैक हुआ, एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और फिर ये ऐसा रिफ्लेक्ट बैक हो गया, समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ स्टूडेंट, अब पूरा प्रॉपर तो नहीं बन पाया बट ठीक है, दिस वन आई एम अज्यूमिंग 60 डिग्री एंगल एंड हियर द इंक्लाइनेशन इज थीटा. Inclination angle, why? The inclination angle between the mirror, okay, how much inclined this mirror is with respect to this mirror is theta. समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा. और इंसिडेंट एंगल क्या हो रहा है, इसको मैं नाम ले लेता हूं फर्स्ट मिरर M1 एंड दिस वन इज द M2, इसका नाम ले लो O, कुछ भी रखो, I रिफ्लेक्टेड रहे इसलिए R N M, नॉर्मल है, और ये भी ऐसा नॉर्मल, दोनों का नॉर्मल पॉइंट में x ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कम में हो गया ना, ज़्यादा नोटेशन नहीं देना पड़ रहा, ठीक. नाउ स्टूडेंट, हियर द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन इज व्हाट, अ रे इज इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर. एवरीवन लिसन द क्वेश्चन, ओके. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, ओके. डायग्राम इज सिंपल ना, ड्रॉ वन मिरर, अनदर मिरर, ड्रॉ द टू नॉर्मल ऑन देयर. नाउ ray is incident on first mirror, after reflecting through the first mirror it's incident on second mirror, and after reflecting from the second mirror the reflected ray is parallel to first mirror. It means what, MR is parallel to OM1. समझ में आ गया? बहुत अच्छा. मतलब क्या है भैया, ये जो रे है ना, ये पैरेलल है इस मिरर का, फर्स्ट मिरर का. आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंक्लाइनेशन एंगल थीटा. समझ में आ रहा है? ये दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो फाइंड करना है. कुछ बच्चे को तो अभी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्या बना दिया मास्टर. इधर फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूं, देखो. वी हैविंग अ वन मिरर, सेकेंड मिरर इज इंक्लाइन ऑन द फर्स्ट मिरर विद हाउ मच एंगल, थीटा. क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है भाई, थीटा. बहुत अच्छे. एक नॉर्मल यहां ड्रॉ करो, एक यहां ड्रॉ करो. A ray is incident on first mirror, after reflecting from the first mirror it incident on the second mirror, and after reflecting from the second mirror the reflected ray is actually parallel to first mirror. first mirror क्या है भाई, M1 ये, और M2 ये. नोटेशन यहीं से डालो और फटाफट लग जाओ सॉल्व करने में. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. अभी समझ में आता लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ा रहे सर, इसलिए क्योंकि जेई ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है. अच्छा, इसमें यूज क्या करना है मैं बता देता हूं. पहले आपको यूज करना है, यू हैव टू यूज द बेसिक ज्योमेट्री ऑफ 9th क्लास. समझ में आ रहा है? 9th क्लास में जो पढ़े हो, 10th क्लास में जो पढ़े हो, वही बेसिक ज्योमेट्री लगाना है. इट्स अ फुल बेसिक ज्योमेट्रिक क्वेश्चन, ठीक है. इसमें कुछ भी ऑप्टिक्स का करना नहीं है. ऑप्टिक्स का क्या दिमाग लगाना है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, ठीक है. क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? नाउ ट्राई इट. क्वेश्चन लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे बोल सकते हैं, अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ फर्स्ट मिरर विद 60 डिग्री इंसिडेंट एंगल, आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, फाइंड द एंगल थीटा. हो गया, शुरू हो जाओ. अच्छा, क्या करना है आपको, मुझे कहीं जाना नहीं है, तुम ही लोग को पढ़ाना है, ऐसे ही देख रहा था. अच्छा, वीडियो को पॉज करो तब इससे बनाओ, ऐसा नहीं है चलते चलते यूं बना दिया है ना. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. बनाओ बनाओ. अच्छा, पॉज करके तुम लोग बना सकते हो ना, क्यों मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं. पॉज करो और बनाओ, ठीक है. मैं सॉल्यूशन देता हूं. देखो, वेरी सिंपल. इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, थोड़ा सा इसको अच्छा से बना ले, कल से कलरफुल चौक है ना, मजा आएगा. सो दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री. बहुत सही. बहुत सारे बच्चे ना, मैं बता रहा हूं, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार दिया है बच्चों के सामने, फटाक से इसको 60 डिग्री लिख देते हैं. मेरे समझ में नहीं कैसे भाई, क्यों नहीं पता है अभी मेरे को कितना एंगल है. बहुत अच्छा. लेकिन मैंने क्या बोला है कि MR इज पैरेलल टू QM1, सॉरी OM है ना, QM तो है ही नहीं, इसको M ले लेते हैं ना, इसको नाम दूसरा ही डाल देते हैं मिरर का. बताओ क्या. अच्छा, तुम लोग ने लिख लिया होगा, जो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सो हियर इट्स अ MR, अरे बहुत सारा M हो गया, एंड P नहीं है ना, इसको P लो. बहुत सही.
हो जाता है भाई, क्या लिखा, नाम ही लिखना था, कुछ भी लिख लो। सो पी आर इज पैरेलल टू ओ एम। अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, थीटा। बहुत अच्छे, ये थीटा है और ये नॉर्मल है, तो ये कितना हो जाएगा, बहुत सही, 90 माइनस थीटा। अच्छा ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो इंसिडेंट एंगल भी कितना हो जाएगा बताओ, 90 माइनस थीटा। अच्छा ये 90 माइनस थीटा हो गया। इस एंगल को सर कुछ एज्यूम कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा, अब देखो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी एन एक्स, जिसका नाम भी एक्स रखा था इसका, ठीक है, पी एन एक्स, क्या क्या लिख सकते हैं अपन, 90 माइनस थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180। सारे एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे। इसको अगर देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हो, तमीज से लिखना चाहो तो x माइनस थीटा, ये हो गया 180, इधर से गया 180 माइनस 150 कितना 30, फर्स्ट लिख दे, मजा आ गया सर, ठीक है। अब देखो इन दिस क्वाड्रिलेटरल, यहां लिख देता हूं, इन क्वाड्रिलेटरल PONX, दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार बना देता हूं, PONX, समझ में आ रहा है। इन दिस क्वाड्रिलेटरल दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। वी ऑल नो द समेशन ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। कब सीखा, 6-7 क्लास में, मुझे भी नहीं पता मैंने कब सीखा। ओके, सो दिस एंगल इज थीटा। कुछ बच्चा सिलेबस लेके आ गया, सर मैंने तो 9 में सीखा। अबे ठीक है, तुम्हारा स्कूल पीछे था। थीटा हियर दिस वन इज 90 प्लस दिस वन इज x प्लस 90 इज इक्वल टू 360। बहुत अच्छा, इसको भी अगर अच्छे से लिखे डेकोरेट करके, किधर लिख दो भाई, किधर लिख दो, किधर लिख दो, किधर लिख दो, लाइन बड़ा हो, थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस गया, कितना हो जाएगा भाई साहब 180। इधर कितना था यार, माइनस थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। अब एक बार लिख दिया था, बार बार कौन मिटाता, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सबट्रैक्ट कर दो फर्स्ट को। बहुत सही, तो ये हो जाएगा भाई साहब प्लस माइनस माइनस, अच्छा यहां से आ गया आपको 2 थीटा, ये दोनों ने एक दूसरे को पीट दिया, कितना आ गया बताओ भाई साहब 150। तो थीटा इक्वल टू किसी ने पूछ लिया, कितना आ गया 75, आंसर आ गया। क्या मरियल क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा इसलिए था क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा था, 12th में पूछ लिया, तो मेमोरी चेक हो गया ना, 3 साल में आप कितना याद कर पाते हो। अगर 9th क्लास के बच्चों को मैं ये क्वेश्चन दूं, चुटकी में बना दे, 12th क्लास के बच्चे को देता हूं, क्या करता है, टाइम लगाता है बस। और जेई ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछना है, जेई इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और आपका मेमोरी पावर भी कभी कभी चेक कर लेता है। नोट कर लो सॉल्यूशन, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। वैसे मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं, देखो दिस एंगल इज गिवन, फर्स्ट इंसिडेंट एंगल इज गिवन 60 डिग्री, इट इज ओके। इफ इट इज 60 डिग्री देन इट दिस वन इज आल्सो 60 डिग्री। इफ दिस वन इज 60 डिग्री तो ये नहीं होगा 60 डिग्री, याद रखना, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, ठीक है। If this angle is theta, then this angle is theta. Why? Because this is given in the question. PR is parallel to OM. बहुत अच्छे, PR is parallel to OM, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। If this angle is theta and this is the normal, so this one is 90 minus theta. If this one is the 90 minus theta, then this will be also 90 minus theta. बहुत अच्छे। अच्छा, और मैंने इसको मान लिया भाई साहब x, आप मान सकते हो, बहुत अच्छे। इन ट्राइंगल PNX, ओके, इस छोटे से ट्राइंगल में देखो, इस PNX में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। सिमिलरली इन दिस क्वाड्रिलेटरल थीटा प्लस ये एंगल कितना है भाई साहब 90 प्लस ये कितना है x प्लस ये कितना है 90 इक्वल टू 360। कट कुटा करके बच गया ये दो इक्वेशन, दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। बहुत अच्छे। नाउ इसको फर्स्ट, इसमें से इसको माइनस कर दो, और जब आपने माइनस किया तो आपको क्या मिल गया 2 थीटा इक्वल टू 150, सो थीटा इक्वल टू 75। समझ में आ रहा है आप लोगों को, लाइट गया, बहुत अच्छे। तो ये आंसर हो गया, मिटाते हैं, कहाँ गया भाई डस्टर। एक क्वेश्चन दे देता हूं फटाफट,
और भी करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन पूरा फ्रेश है, मैंने बनाया है, हाँ कहीं से कॉपीड नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं, बट अभी जो क्वेश्चन देने वाला हूं ना एकदम फुल फ्रेश क्वेश्चन, ये मैंने ही बनाया है, एकदम कॉपीराइट है और आप लोग के लिए स्पेशली। अच्छा क्यों? क्योंकि अगर जेई ऐसा पूछ सकता है तो ऐसा भी पूछ सकता है कि नहीं? चलो दिस वन इज द नॉर्मल एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉर्मल। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आएगा इसीलिए। अब क्या है, वन रे इज फॉलिंग एट दिस पॉइंट विथ थीटा एंगल, पता ही नहीं है अभी क्योंकि वहां पे ये पूछा था, मैंने अभी यही अननोन कर दिया और ये दे दिया आपको 120 डिग्री। देखने से भी लग रहा है 120 डिग्री, बहुत सही। ये पहली बात यहाँ आया और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हुआ है ये जो एकदम बढ़िया दिख रहा है ना, ये लाइट है, रेज। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो कैसा है, सो देखो, दिस वन इज द फर्स्ट मिरर, दिस वन इज द सेकंड मिरर इज इंक्लाइंड हियर। Now a ray, a incident ray is falling on the first mirror at O point, and after reflecting from the first mirror it is falling at the P point of the second mirror. Then after the reflected ray is now parallel to normal, यहाँ पे Q लेता हूँ, the reflected ray is parallel to normal। समझ में आ रहा है आप लोगों को? This reflected ray is parallel to normal। क्वेश्चन में पहले क्या गिवन है, गिवन है क्यू ओ इज पैरेलल टू पी, इसका नाम ले लो कुछ आर, इसका नाम ले लेता हूं इंसिडेंट रे है इसलिए आई पी आर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा। क्या फाइंड करना है आपको? एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। ठीक है, फिर से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। The good question, again it's a good question, and if you already solved that question you can easily solve this question। अगर वो क्वेश्चन वहां बोर्ड पर देख के छापे हो तो अभी ट्राई करो, इसलिए जरूरी है क्योंकि और इस टाइप का क्वेश्चन में मैंने देखा है पूछते हुए, इवन अच्छे अच्छे एग्जाम्स में देखा है। जेई एडवांस में आ सकता है, जेई मेंस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है, और कोई एग्जाम पूछ सकता है, कोई स्टाइलबाजी करने के लिए भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे। तो आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई इट। मैं क्यों वेट करता हूँ, भूल जाता हूँ, मुझे ना आदत हो गया ना क्लास में क्वेश्चन दे करके थोड़ा घूम लो, बातें कर लो, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलो आप लोग फटाफट पॉज करो और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा स्टूडेंट देन दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। बहुत अच्छे। अच्छा, ये आपको एक चीज गिवन है, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, मतलब अगर तुमने इसको माना, क्या मानना है, मैं इसको मान लेता हूं, इसको थीटा माना है, इसको आर मानता हूं ना, क्या दिक्कत है। तो ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, कुछ भी मान लो, राम मोहन सोहन, जो मन है तुम्हें। बहुत अच्छे। तो मैं एक इक्वेशन, देखो दिस इज टू लाइन और इसको एक लाइन जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, दोनों लाइन को। इसका मतलब एक साइड का जो दो एंगल होगा, ये भी 9th क्लास में अपने पढ़ा है पैरेलल लाइंस में, अब मुझे पता नहीं 9th में या 10th में, 9th में ही होगा शायद, छोड़ो। तो कहीं पर भी जब पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी होता है ये, है ना, तो ये थीटा और ये आर थीटा इक्वल टू, सॉरी 2r इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको मैं कुछ और एंगल मान लेता हूं, यहां क्यू लिया है ना, तो इसको भी मैं क्यू ही लेता हूं, ऐसा क्यू ले लेता हूं, छोटा नहीं, नाम लिखेंगे क्या, छोड़ो, मान लेते हैं ना क्यू, क्या दिक्कत है, ठीक। सो आप यहां से स्टूडेंट लिख सकते हो थीटा प्लस 2r इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं भाई। दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन यहां से पास हो रहा है, दोनों को कट कर रहा है, ये एंगल, अरे यार याद ही नहीं आ रहा है सर, अच्छा ये एंगल प्लस ये एंगल होता था 180 डिग्री, वही यूज कर रहा हूं भाई, ऊपर की ओर है, समझने की बात है बस। अब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, तुम सब समझदार हो। नाउ स्टूडेंट, अगेन इन दिस ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, अभी छोड़ता हूं, इन अ ट्राइंगल क्यू ओ पी, क्या क्या लिख सकेंगे, क्यू ओ पी में क्यू
प्लस थीटा प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत अच्छे। नाउ स्टूडेंट, इन दिस क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो व्हाट यू कैन राइट, क्वाड्रिलेटरल क्या है भाई, QO, इसका नाम कुछ नहीं रखा, बताओ क्या रख लूं, N नहीं लिखा क्या कहीं पे, N लिखो यार। हाँ, सो क्वाड्रिलेटरल QONP, क्वाड्रिलेटरल QONP, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, समझ में आ रहा है आपको। इन दिस क्वाड्रिलेटरल Q प्लस, अच्छा ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉन है भाई साहब, तो यह हो गया 90 डिग्री प्लस ये गिवन है क्वेश्चन में, बहुत अच्छे, प्लस दिस इज आल्सो गिवन 90 डिग्री इज इक्वल टू 360, समेशन ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, सिंपल, बहुत अच्छे। अरे एक ही वेरिएबल है भाई साहब, तो इसका Q का वैल्यू निकाल लेते हैं ना अपन, समझदारी वाली बात करते हैं। 180 प्लस 120 300, अरे 60 डिग्री निकल गया, बहुत सही। Q इक्वल टू 60 डिग्री, पुट कर भाई वैल्यू, किधर पुट कर दे वैल्यू, किधर करे किधर करे, इधर भी करके R का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो भाई मैं तुम्हारे सामने में सॉल्व कर रहा हूं, कोई रट्टा मार के आने की कोई जरूरत है नहीं। अब देखो 2R, Q का वैल्यू 60, 120, R का वैल्यू यहीं से निकाल लो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा, मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ। थीटा प्लस 2R इक्वल टू 180, बहुत अच्छे। थीटा इक्वल टू हमारे पास निकल चुका है, नहीं निकला है, हाँ क्या यार, ये है ना, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू रखते हैं 60 डिग्री, है ना, ये एक इक्वेशन हमारा काम का है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, और Q में 60 डिग्री रखते हैं, तो थीटा प्लस R इक्वल टू 120, ओके, थीटा प्लस R इक्वल टू 120, इसकी ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। फटाफट सॉल्व कर देते हैं अपने को, लेकिन थीटा चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई मारते हैं, 2 आ गया, इधर 2 आ गया, और इसको 240 है कि नहीं, बहुत अच्छे। अब क्या करो, माइनस कर दो, खपाच खपाच खपाच, इसने इस तरह को पीट दिया, यहाँ पे बच्चा माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस में माइनस 60 डिग्री, माइनस ने माइनस को कट किया, थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, आंसर। आसान है, और भी मेथड है, बहुत सारा मेथड है, जो मुझे स्ट्राइक कर गया वही मेथड नहीं है तो 9th क्लास का क्वेश्चन तो। और अभी सच में आप अपने किसी 9th क्लास के भाई बहन से पूछो, और वहां से क्या करना है, इस मिरर को गायब कर देना, मिरर दे दिए ना तो वो लोग सर फोड़ लेगा, मिरर को हटाना और किसी 9th क्लास के बच्चे से पूछना, वो आपसे तेज बनाएगा, है कि नहीं, सिंपल। चलो स्टूडेंट, तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा प्लेन मिरर का डिस्कशन करेंगे, और भी क्वेश्चंस मैं आपको नीचे जो DPS डालूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, लिंक में, वहां से आप करना, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां पे अपलोड कर दूंगा, इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है, वो दोनों मैंने ही बनाए हैं खुद। अच्छा, मैं ऐसे काम करते रहता हूं बैठ के, एक क्वेश्चन देख लिया, उसमें डेटा वेटा चेंज करके, डायग्राम चेंज कर करके, कभी कभी टाइम पास। लैपटॉप बंदा हो रहा है, ठीक, ओके। सो नाउ विल डिस्कस द प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर, हाउ प्लेन मिरर इज फॉर्मिंग इमेज। लुक एट दिस स्टूडेंट, दिस वन इज द प्लेन मिरर, वीडियो लंबा हो रहा है, शायद प्लेन मिरर ही डिस्कस कर पाऊंगा, ठीक है। सो लुक एट दिस स्टूडेंट, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, ओके, how a plane mirror will form image, okay, if object, a point object is lying in front of this plane mirror. Now you will draw a perpendicular on this plane mirror and extend it. It means the image will lie on this line only. समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। कहाँ लाई करेगा भाई, इतना तो पता चलेगा, इसी लाइन पे करेगा, बट कहाँ, measure this distance and take a cut.
बहुत सही। अगर मैं मानूं कि ये भैया डी डिस्टेंस फार है फ्रॉम दिस मिरर, मिरर का नाम लिख दो भाई, सुंदर सा एम और एम डैश, बहुत सही, एम डैश। यहां पे आपका क्या बनेगा, इमेज। हेयर यू विल गेट द इमेज एंड दैट इज ऑल्सो डी डिस्टेंस फार फ्रॉम द मिरर। समझ में आ रहा है, बहुत सही, ठीक। इसी तरीके से भाई यहां पे लिख रखा है उसी को, पॉइंट वाइज पॉइंट इज ड्रॉप अ परपेंडिकुलर मिरर एंड एक्सटेंड इट टू द बैक। ओके भाई, बैक तक एक्सटेंड कर दिया, बहुत अच्छे। और फिर वैसे ही इतना ही मेजर करके वही लिखा हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट। आप चाहो तो इसको पॉज करके ये लिख भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं, यू ऑल आर एक्सपर्ट, आपको बनाने आना चाहिए, सिंपल। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे कि कोई मैं यहां पर उसे दे रखा होगा कि एक्सटेंडेड कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, तो मैं ले लेता हूं जैसे कि एक नर्सरी क्लास स्टूडेंट। अच्छा, मैं नर्सरी क्लास का एग्जांपल लेता हूं ना, क्योंकि नर्सरी क्लास इज माय फेवरेट। अब क्यों फेवरेट है बताऊंगा बाद में। इफ आई एम assuming this nursery class student is actually x distance far from the mirror, समझ में आना चाहिए। So what you will get here the image, ऐसा नहीं है नर्सरी क्लास के बच्चों का इमेज 12th क्लास का बनेगा, जैसा नर्सरी क्लास का बच्चा है वैसे ही बनेगा। थोड़ा सा डिफेक्ट आएगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आएगा, अभी बताऊंगा क्या आएगा। That will be also x distance far from the mirror, is it or not? बहुत सही। अब देखो क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर ये बच्चा इस हाथ में एक फूल लिया हुआ है, क्या यार क्या घटिया फूल है, अच्छा कोई बात नहीं चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि भैया हाथ ही चेंज हो गया, ये तो इस हाथ में हो गया फूल, ये कैसे, ये इसलिए हुआ, देखो ये हाथ यहां से कितने डिस्टेंस पे, मैं मान लेता हूं ये आपका x डैश डिस्टेंस पे, तो x डैश वाले हाथ में ही तो फूल होना मांगता है भाई साहब, इसीलिए ऐसा हुआ है कि नहीं। खाली हाथ ज्यादा दूर था, खाली हाथ अभी भी मिरर से ज्यादा दूर है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। दैट्स व्हाई हियर इफ यू आर राइटिंग r, so here you will get this r is like this, simple. So now you understand how a plane mirror is forming image, ठीक है। इसको ही इसने अच्छे से ऐसे लिख करके बताया है कि किस तरह से ये करता है, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, जैसे आपने नर्सरी क्लास के बच्चे का इमेज बनाया, ऑब्जेक्ट लिया था नर्सरी क्लास का स्टूडेंट, तो इधर जो इमेज में भी नर्सरी क्लास का ही स्टूडेंट का इमेज बनेगा, बहुत सही। सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग अ मिरर, समझ में आ रहा है आपको, इफ यू आर टेकिंग अ मिरर एंड वहां पे आर ऐसा सीधा लिखा, आपका इमेज कैसा बनेगा भाई साहब, उल्टा, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस पर बेस एक क्वेश्चन आता है, देखो मैंने डाल रखा है इसमें, बहुत अच्छे। ये एक क्लॉक है, पॉज करो और क्वेश्चन लिखो, फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एक वॉल क्लॉक है जो अननंबर्ड है, इट्स अ अननंबर्ड वॉल क्लॉक। क्यों भैया अननंबर्ड, क्योंकि लिखा नहीं है यहाँ पे 1, 12, 2, 3, 4 ऐसा, है ना। मेरा भी देखो अननंबर्ड ही है, देखो देखो देखो, है ना, अननंबर्ड। अच्छा है घड़ी, ठीक है अच्छा छोड़ो। सो इफ वी हैविंग अ अननंबर्ड वॉल क्लॉक, ओके, एंड यू आर पुटिंग अ मिरर हेयर, और इसके इमेज में देख रहे हो, तो क्या अभी कितना टाइम दे रखा है भैया, 8:12, इट्स 8:12 AM PM, बताओ अबे कुछ भी है, क्या मतलब है यार AM PM, पता थोड़ी चलता है यार, डिजिटल क्लॉक थोड़ी है ये, एनालॉग क्लॉक है दादा के जमाने का। अब मुझे ये बताओ कि एक तो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, शॉर्ट ट्रिक के लिए मुझे चाहिए एक पेज, छोड़ो अब पता नहीं यहां पे पेज लेके मैं नहीं बैठा। अब क्या करना, इस क्लॉक को हूबहू ड्रॉ करना आप एक प्लेन पेज पे, उसको पीछे से देख लेना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूं बनाने का, बहुत सही। देखो ये ऐसा था और ये ऐसा है, अब क्या होगा,
इधर जो क्लॉक बनेगा, लुक एट दिस इन इमेज साइड, हेयर यू विल फाइंड इट इज हेयर एंड दिस वन इज द हेयर। अच्छा ये देखो, यहां होता है आपका 3 और यहां होता है 4। अच्छा भैया 4 से पहले 3 तो कितना है भैया, 3 बज के कुछ तो बनेगा। इधर कितना है भाई साहब, 8 बज के 12 है। बहुत अच्छा, 12 किधर है, इधर 12 1 2 इस साइड जाएगा, ये होता है 50, इट्स 48। बहुत अच्छे, समझ में आ गया। अदरवाइज आई एम टेलिंग अ शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस। शॉर्ट ट्रिक इज वेरी सिंपल, you have to just draw the same clock, unnumbered clock on a page, and if you will look it from the back side of that page you will get the answer, है ना। अगर किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या करना है, फटाफट बनाना है, पीछे से देख लेना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, गलती हो सकता है। बहुत अच्छे, हमारे पास तो सर बहुत दिमाग है, हम लगाएंगे। ठीक है लगाओ यार, हमारा क्या जाता है, गलत करके आओ सकते हो। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है कि भैया जितनी नजर में आप आ सकते हो, जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं अपने क्लास में खड़ा हूं तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू है ऐसे यूं। अब देखो इधर घूम गया तो जो बच्चे यहां पे बैठे हैं वो बदमाशी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो मेरे फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। सिंपल वही चीज है, ये डायग्राम में वही लिखा रखा है। ठीक है, वैसी चीज को इंग्लिश में अच्छे से लिख रखा है, आप लोग पॉज करके देख लो, समझ में आ गया। फील्ड ऑफ व्यू यूं लिखा हुआ है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे। जो काम की चीज है उस पर आ जाते हैं। हाँ ये बड़ा ही काम का चीज है और मेरे हिसाब से ये इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे एंड विल बाइंड अप द टॉपिक फॉर टुडे। ओके, टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट द स्फेरिकल मिरर। ओके स्टूडेंट, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैंने देखा है इस पे क्वेश्चन बहुत सारे इमेज में सॉरी एग्जाम में आया है, मेरे टाइम में भी आया था। नाउ स्टूडेंट वी हैविंग अ मिरर। मैं इसको समझाने के लिए आपको ना एक बहुत ही अच्छा काम करता हूं। देखो ये मान लो एक्स एक्सिस है, बहुत सही। ये क्या है भाई साहब, वाई एक्सिस। अभी एक्स वाई लेते हैं, जेड आपको पता ही है 3D में होता है ना, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, y axis, is it or not? Okay, so now student look at this one is the x axis, this one is the y axis. Okay, now one object is situated at this point, so I am assuming this one is situated actually x distance far from the mirror. Image will form किधर बनेगा भाई साहब, that will be also x distance far। अगर मैं उसको लिखना चाहूं, अगर मैं इसको x माना हो तो यहां पे तो -x, उल्टा वैसे आएगा, इधर माइनस तुम लोग लेते हो। यू आर एज्यूमिंग दिस इज अ पॉजिटिव एक्सिस, दिस वन इज अ नेगेटिव एक्सिस, है कि नहीं, पॉजिटिव y नेगेटिव y, इज इट और नॉट? वेरी गुड, अब आएगा मजा। देखो, सो व्हाट यू कैन से, इफ यू आर एज्यूमिंग योर ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड x डिस्टेंस फार फ्रॉम द मिरर, देन योर इमेज विल फॉर्म दैट इज द -x, उसका उल्टा। बात बराबर है कि नहीं? अगर तुम्हें लगता है भैया ये -x है तो ये +x हो जाएगा, उसमें क्या जाता है, वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि इफ x ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ सर समझ में आ गया। अबे भाई ये तो 11th क्लास में पढ़ के आते हैं अपन कोऑर्डिनेट में, इज इट और नॉट? सिंपल। देखो फिर से मैं बताता हूं, इफ दिस आई एम अज्यूमिंग दिस वन इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज द इमेज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। नाउ दिस ऑब्जेक्ट, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज x डिस्टेंस फार, इस पोजीशन को क्या कहेंगे भैया, -x। तो -x पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, बहुत सुंदर, और उसका इमेज कहां बनेगा, +x पे। सो अगर मैं बोलूं पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज x, देन इट विल बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज -x, दैट इज रिटन हियर। बहुत अच्छे, शानदार। अगर मैं आपको फिर से बोलूं कि पोजीशन ऑफ y, अगर मैं इसको यहां रखता हूं, अब देखो अब आएगा मजा। ठीक है, ये मान लो y डिस्टेंस ऊपर चले गया,
y डिस्टेंस ये ऊपर चले गया, तो ये भी इमेज भी भैया y चल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बोलेगा कि नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, लॉकडाउन चल रहा है, नहीं जाएंगे भाई साहब, नहीं, ऊपर जाना होगा। तो ये y ऊपर गया, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, पॉजिटिव गया भाई साहब, ये भी तो पॉजिटिव ही है। अगर मैं इसका पोजीशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? -x y, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा भाई साहब? x, y। बहुत सुंदर। अच्छा, तो अपन ये लिख सकते हैं y ऑफ इमेज इक्वल टू y ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सुंदर, दो रिलेशन मिल गया। अच्छा सर, आपका तो z दिख ही नहीं रहा है। मान लो होता तो भाई वही होता जो मंजूर खुदा होता। समझ में? आसान है ना? गर्मी लग रहा है, बस यही आसान नहीं है। लगवाऊंगा एसी। ठीक है, क्लासरूम में एसी नहीं लगाना चाहिए वरना बच्चे सो जाते हैं, है ना? पैसे लेने के चक्कर में मैं एसी नहीं लगा देता बच्चों के क्लास में। ओके, दिस इज क्लियर स्टूडेंट। नाउ ये हमारा मकसद था ही नहीं, हमारा मकसद था कि अगर हमने यहां मिरर लगा दिया, लुक एट दिस, इफ क्या करूं, हाँ ये मिरर है और मैं इसके तरफ मूव कर रहा हूं, व्हाट विल हैपन? माई इमेज, मेरा जो मिरर के थ्रू इमेज बनेगा, दैट विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स मी। इज इट क्लियर? दैट विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स मी। सो आई एम assuming if this object is start moving in this direction with the velocity v। अच्छा, तो क्या होगा भैया? कुछ नहीं, यहीं से आ जाएगा अपना, है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करें। इधर लिखता हूं मैं, है ना? ये पोजीशन वाला पार्ट हुआ, इधर वेलोसिटी का पार्ट लिखेंगे। तो आप लिखोगे dxim डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, माइनस तो पहले से है भाई साहब, डिफरेंशिएशन करने से माइनस साइन थोड़ी भागेगा। अच्छा, dx ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर डिवाइडेड बाय dt। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे। क्या आ जाएगा? v ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये अलोंग x एक्सिस है तो इसको मैं यहां पे छोटा सा vx भी लिख सकता हूं, है ना? सो अलोंग x एक्सिस vx ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ v अलोंग x एक्सिस है, इसलिए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, इसको ऐसे लिखते हैं, मिरर। आ गया समझ में? बहुत अच्छे। Now if we are differentiating this, I'm assuming this is moving in this direction. अगर ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, क्या करना है? You have to just differentiate the position of image and object. So if you are differentiating, like I'm writing dyim divided by dt is actually equal to dyom divided by dt। इसका मतलब क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ y along y एक्सिस, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज एक्चुअली इक्वल टू वेलोसिटी। यही होगा भाई साहब ऑब्जेक्ट एंड मिरर, इसमें कोई चेंज नहीं। सिमिलरली यू कैन राइट इट फॉर द, ओ यार फोन किसका आ गया?